গো হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন বজরং দলের জেলা সভাপতি। না, আপনার কান ঠিক আছে, আপনার কান পরিষ্কার করার দরকার নেই। ঘটনাটা খোলসা করেছেন হেমরাজ মিনা, যিনি মুরাদাবাদের এসএসপি। পুলিশ কি বলছে এটা আমি সংক্ষেপে ঘটনাটা কি ঘটেছে বলে নেওয়ার পরে আপনারা এই ভিডিও শেষে দেখতে পাবেন। আমরা ঘটনায় আসি। যোগীর রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, সেই রাজ্যের জেলা মুরাদাবাদ। এই মুরাদাবাদেই ছটলেট থানার অন্তর্গত কাওয়ার পথে গত 16 তারিখ একটি গরুর কাটা মুন্ডু পাওয়া যায় এবং ঠিক তারপরেই আবার 28 তারিখ একটি গরুর মৃতদেহ পাওয়া যায় এবং মৃতদেহের পাশে একজনের ছবি এবং নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার পাওয়া যায়। পুলিশ এই ছবি নাম ঠিকানা দেখে পৌঁছে যান মেহমুদ নামে একজনের কাছে। এইরকম ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে মেহমুদই এই গরুটাকে হত্যা করেছে, কিন্তু মেহমুদকে জেরা করে পুলিশ এবং সেখান থেকে মেহমুদের ওপরে পুলিশের খুব একটা সন্দেহ হয়নি। মেহমুদের কাছ থেকে সূত্র পেয়ে পুলিশ জানতে পারে যে মেহমুদের সাথে শাহাবুদ্দিনের নামে একজনের ঝামেলা চলছে। পুলিশ পৌঁছায় শাহাবুদ্দিনের কাছে। শাহাবুদ্দিনকে জেরা করা শুরু হলে শাহাবুদ্দিন সবকিছু গড়গড় করে পুলিশকে জানিয়ে দেয়। শাহাবুদ্দিনের কাছ থেকে যেটা জানতে পারা যায় যে দুটি গরু হত্যা করার জন্য তাকে 2000 টাকা দিয়েছিল বজরং দলের মুরাদাবাদের যিনি অধ্যক্ষ মনু বিষ্ণই। কেন মনু বিষ্ণই এই টাকাটা তাকে দিয়েছিল এবং কি উদ্দেশ্য ছিল? মনু বিষ্ণইয়ের উদ্দেশ্য ছিল এই ছটলেট জেলার ছটলেট থানার যিনি এসএইচও, আমরা যাকে আইসি বা ওসি বলি, বাইরে সেটাকে এসএইচও বলা হয়, সেই ছটলেট থানার যিনি এসএইচও সত্যেন্দ্র কুমার শর্মা, তাকে ফাঁসাতে হবে। কেন না, এই সত্যেন্দ্র কুমার শর্মা ছটলেট থানার এসএইচও, তিনি 32টি গরু আটক করেছিলেন, যেই গরুগুলো সামলি থেকে লগ্নর দিকে পাচার হচ্ছিল। মনু বিষ্ণই এই এসএইচওর উপরে চাপ প্রয়োগ করেন যে এই 32টা গরু মনু বিষ্ণুয়ের পরিচিতদের হাতে তুলে দিতে হবে। তিনি মনু বিষ্ণুয়ের চাপের কাছে নথি স্বীকার না করে গরুগুলোকে সরকারি যে তত্ত্বাবধানে রেখে দিয়েছিলেন। ফলে মনু বিষ্ণুই চেয়েছিলেন চাপ প্রয়োগ করে এই এসএইচওকে সরিয়ে দিতে, এরকম প্রমাণ করা যে তার অধীনে লাগাতার গো হত্যা হয়ে যাচ্ছে, তিনি কোনো কাজ করছেন না। অন্যদিকে মনু বিষ্ণুই শাহাবুদ্দিনকে বুঝিয়েছিলেন যে তার শত্রু যে মেহমুদ, এই ঘটনায় তার জেল হবে গো হত্যার মামলায়। সুতরাং শাহাবুদ্দিন যেটা বুঝেছিলেন যে এটাতে মনু বিষ্ণুয়ের লাভ, শাহাবুদ্দিনের লাভ, তার যিনি শত্রু মেহমুদ তিনি জেলে যাবেন এবং উপরন্তু 2000 টাকা পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমে 16 তারিখে গো হত্যা করা হয়, গরুর কাটা মুন্ডু রেখে দেওয়া হয় এই কাওয়ার পথ বলে একটা অঞ্চলে। তারপরেও মেহমুদ গ্রেপ্তার হয় না। অনেকভাবে পুলিশকে এইভাবে চালনা করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু এর ফলে যেটা হয় যে শাহাবুদ্দিন খুব ক্ষিপ্ত হয়, মনু তাকে দ্বিতীয়বার একই কাণ্ড করার কথা বলেন। তখন 28 তারিখে চেতরামপুরে বিমলা দেবী নামে একজন বিধবার গরু চুরি করে শাহাবুদ্দিন সেই গরুটিকে হত্যা করে ফেলে দেয় চেতরামপুরে, এবং সেখানে এই গরুর ডেড বডির পাশে এই মেহমুদের নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার ছবি রেখে দিয়ে আসা হয় এবং তার সূত্র ধরেই পুলিশ পৌঁছায় মেহমুদের কাছে এবং গোটা ঘটনা তার কাছ থেকে শোনে। সেখান থেকে শাহাবুদ্দিনের কাছে ঘটনা শোনে এবং সেখান থেকে কল রেকর্ড দেখে, তদন্ত করে এবং সেখান থেকে পৌঁছায় এই মনু বিষ্ণুইয়ের কাছে। এবং মজার বিষয় হলো এই গো হত্যার বিরুদ্ধে এবং যারা গো হত্যা করেছে তাদের ফাঁসির দাবিতে এই মনু বিষ্ণুই কিন্তু এই এসএইচওর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অর্গানাইজ করে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে যারা কাল্পনিক ঈশ্বরের নামে বা গরুর নামে জ্যান্ত মানুষ খুন করে, তারা আদৌ ভালো মানুষ নন। তারা না ঈশ্বরকে ভালোবাসেন না গরুকে ভালোবাসে। এই ধরনের মানুষের থেকে সাবধান থাকতে হবে। এবার আপনারা শুনে নিন যে মুরাদাবাদ জেলার যিনি एसएसपी हेमराज मीना তিনি ঠিক কি বলেছেন। अभी हाल ही में पिछले इसी महीने में 16 तारीख को थाना छजलेट में एक घटना हुई थी जिसमें
जो कावड़ पथ है वहाँ पे एक गौ जो वंश है उसका सिर वहाँ पे बरामद हुआ था और इसी पे फिर वहाँ पे थाना छजलेट में एक अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ और उसके बाद में 28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चेतरामपुर में रात्रि में और वहाँ पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी और उसको बाद में फिर सूचना मिली और पुलिस ने जाके उसको फिर बरामद किया और फिर बाद में आगे की इसमें कार्रवाई हुई। और दोनों जो घटना है वो कुछ आपराधिक रूप से जिस तरह से घटनाएं होती है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी और चूंकि जो घटनाओं की जिस तरीके से सूचना मिली और जिस तरीके से पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी दी गई उससे एक शक हो रहा था कि ये घटना प्लानिंग के तहत की गई है और ये सिर्फ गौकसी के लिए नहीं की गई है बल्कि इसमें और भी जो इनका कोई हिडन एजेंडा है। और इसकी जब हम लोगों ने पूरी टीम बना के जब जांच किया गया और पूरा देखा गया कि जिस तरीके से कैसे सूचना मिली पुलिस को, क्योंकि जो पूर्व की जो घटना हुई थी उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया उसने ये बताया कि जो गौवंश का जो सिर जहाँ पे मिला है वहीं से वो 10 मिनट पहले गुजरा था, तब वहाँ पे कोई अवशेष नहीं था, लेकिन जब वापस आया तो उसको अवशेष मिला और उसकी सूचना उसने पुलिस को दी। और सेम ऐसे ही जो 28 तारीख की घटना है इसमें रात्रि में 12 बजे सूचना मिलती है पुलिस को और क्षेत्राधिकारी को और थाना प्रभारी को। जब ये मौके पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति का लोअर और उसमें एक पर्स मिला और पर्स के अंदर एक फोटो मिली। जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो फिर जिस व्यक्ति का इसमें पर्स में फोटो मिला और उसका नाम जो लिखा मिला मोबाइल नंबर उसमें मिला, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मेरी गांव के कुछ लोगों से पहले से पुरानी हमारी रंजिश है और उसी रंजिश में पहले बात चल रही थी कि ये लोग मुझे फंसा सकते हैं। और उसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश माया, जिसमें एक का नाम साहबुद्दीन था और दूसरे का नाम जमशेद है। ये अपने जो विपक्षी है उसको जेल भिजवाने के लिए इन लोगों ने इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना कांट पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया, थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले इन्होंने 14 तारीख की घटना को प्लान किया जिसमें इन्होंने नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गौवंश का जो सिर है उसको मतलब कुछ अवशेष लाके और थाना छजलेट में रखे जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए। और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर यही काम किया और इसमें साहबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने जो भी आपके जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा और उनका फोटो, उनका जो नाम, सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के वहाँ पे पहले जो है एविडेंस क्रिएट किया गया और उसके बाद में वहाँ पे जो गाय है उसका गला काटा गया और गला काट के फिर इनके द्वारा सूचना दी गई और जो लोग जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया वो लोग मौके पे पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दिया। तो गाय को भी इन्होंने जो एक विमला देवी नाम की महिला है उसके घर से चोरी करके ले गए थे रात में और रात में इन्होंने ले जाके उसको काटा है। तो इस तरीके से ये जो दोनों घटना है ये शुरू से ही अपने जो नेचर में संदिग्ध प्रतीत हो रही थी और इसमें जिस तरीके से सूचना दी गई थी और जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी इन लोगों के द्वारा किया गया था, इससे ये लग रहा था कि इनमें कुछ लोगों की साजिश हो सकती है और उसी पे हम लोगों ने काम किया। तो आज ये पूरी तरीके से इस चीज़ का पूरा खुलासा हुआ है और इसमें इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोग अभी इसमें हुआ है और इसमें इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोग अभी इसमें वांछित हैं जिसमें एक जमशेद और नईम है जिसने पहले वाली जो घटना है उसको कारित किया था और जो दूसरी घटना में जो साहबुद्दीन के साथ में जो जमशेद है उसका जो भाई है वो अभी इसमें गिरफ्तारी उनकी शेष है। इनके ऊपर इनाम घोषित किया जा रहा है, इनकी गिरफ्तारी से की जाएगी। और अभी इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन 4 लोगों के जब हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इनकी लोकेशन और बाकी सारी चीज़ों को देखा गया, इनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स देखी गई, इनके मोबाइल का जो डेटा है उसको देखा गया, तो इन सारी घटनाओं के जो साक्ष्य मिले हैं और इन सभी लोगों के द्वारा इस घटना को और जिस जो भी षड्यंत्र इन्होंने किया था उस सबको स्वीकार किया है। और आज इनको इसी तरीके से पूरा गिरफ्तार करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है और इसमें आईपीसी की जो धारा है 120 इसमें बढ़ाई गई है। इसके साथ ही 380 और 457, 411 की भी इसमें बढ़ोतरी की गई है दोनों मुकदमों में और 211 की भी इसमें बढ़ोतरी की गई है। इस तरीके से इनको जेल भेजा जा रहा है। ये जो अभियुक्त जो जेल भेजे जा रहे हैं इनमें से जो रमन चौधरी है इनके विरुद्ध पहले भी 2021 में एक 366 का मुकदमा है। राजीव चौधरी है इनके विरुद्ध 2019 में एक 147, 48 और 427, 506, 506 का मुकदमा है। 2019 में इनके ऊपर 323, 452, 504, 506 का मुकदमा है।
फिर 2019 में 147, 48, 452 का एक और मुकदमा इनके विरुद्ध है। और इसी तरीके से जो मोनू बिश्नोई हैं, इनके विरुद्ध 2015 में एक मुकदमा है 147, 49, 323, 504 का। और 2023 में इनके ऊपर थाना कांट में 147, 304, 323, 506 का एक मुकदमा है। और 2022 में भी इनके द्वारा एक घटना कांट में की गई थी, वो इनके ऊपर मुकदमे हैं। तो इस तरीके से ये मूल रूप से ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। और इस तरीके से जो अपनी गतिविधियों में करते हुए वहाँ पे थाने पे और जो बाकी अन्य जो ऑफिस वगैरह है वहाँ पे अपना दबाव बनाने का काम करते हैं और दलाली का जो काम करते हैं। और क्या किसी संगठन से जुड़े हुए हैं सर? अभी इसकी जांच की जा रही है कि किसी संगठन में काम करते हैं नहीं करते हैं। अभी तक की जो जानकारी है उसमें इन लोगों की जो कि आपराधिक इतिहास है, तो अभी इसकी जांच की जा रही है कि ये लोग किसी संगठन से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी जानकारी मिली है, तो उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনে প্রেস করবেন এবং সহনাগরিকদের সচেতন করার জন্য এই ভিডিওটা ছড়িয়ে দিন। শুভরাত্রি।